with the spectacular validation of the Jewish claim to truth. From the Jewish perspective, it's around the corner. It's around the corner. The end of history is around the corner. But Hinduism and Buddhism differ. They do not have a conception of an end of history. Rather, they believe that history moves in cycles. It is cyclic. That history continuously repeats itself. Yes, there is constant conflict between truth and falsehood. And when one cycle ends and another cycle begins, the end of a cycle will witness the triumph of truth over falsehood. So there is some similarity, even though there is this belief in the cyclic movement of history. Not only is the movement of history cyclic, but also human beings are born and die and are reborn, reincarnation. And this cycle of rebirths will continue until, in the Hindu perspective, truth triumphs in the human being. And then that human being is delivered from rebirth. He now earns eternal life. The golden age of Hinduism was the age in which the gods themselves took human form, Ram and Vishnu, and they lived on earth. And the Hindu view is that the golden age witnessed a holy land, but not that holy land in Jerusalem, but this holy land which is Bharat or India, and territories which are also around India are also part of Bharat. Pakistan is a part of Bharat, Bangladesh is a part of Bharat. And the truth triumphed in that holy land, the truth dominated in that holy land of Bharat. History cannot end. That is, a cycle of history cannot end without the truth once again triumphing in the holy land of Bharat. Hindus, I believe, I've heard it from Hindu scholars, Hindus believe that the present cycle is now close to coming to an end. And so there is some similarity now between the Hindu view, the Christian and the Jewish. And the end of history will witness the triumph of Hinduism in Bharat. And that triumph of truth in Hinduism would validate the Hindu claim to truth. From the Hindu perspective, it's around the corner. राम जन्मभूमि नहीं, काशी का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा की कृष्ण की जन्मभूमि, ये तीनों उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अलग बात है कि मक्का जो है, मदीना, वो भी हमारा स्थान है। शंकल द्वीप, कुरान में भी इसका उल्लेख है, वो भी हमारा है। जंग जारी है, बहुत पुरानी जंग चल रही, जंग का अंत एक ही होगा, न ईसा न मूसा। केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, तो उसका जो वैदिक सनातन धर्म है वही इस देश के अंदर स्थापित होगा, देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर स्थापित होगा। लड़ाई तो वहां तक जाने वाली है। ये सब इसके पंथ हो जाएंगे हिंदू समाज के। समय की प्रतीक्षा करो। बाइलैटरलिज्म, ये समझना चाहिए हमें, व्हाट इज बाइलैटरलिज्म, और इसके ऊपर इंडिया इसरार क्यों करता है कि दो तरफा होना चाहिए। वो ये कहते हैं, उनका जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो ये कि
पाकिस्तान जो है वो उस एंटिटी के अंदर एक छोटी सी इकाई है जिसका नाम इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है। उसके अंदर ये एक हमारी बाजगुजार रियासत, अगर ना भी सही तो एक छोटी सी रियासत है। तो इसका बाहर से किसी आके किसी का इन मामलात के अंदर मुदाखलत करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ करना है वो हम खुद करेंगे। यानी ये मनरो डॉक्ट्रिन का एक शाखसाना है। यानी दी कंट्रीज ऑफ द एरिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिक्किम, भूटान एक्सेट्रा, वो सारे के सारे वो हमारे बाजगुजार ना से ही अमलन, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर वो काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से DGISI को अलामती तौर पे बुलाया गया इंडिया ने। बिल्कुल 61 साल हमने इस तगोदाव में गुजारे, भूख काटी, हमने बहुत महरूमी, इतनी बड़ी फौज हमने पाली। एक मकसद तो कश्मीर था, इसमें शुबा नहीं। न्यूक्लियर हमने बनाया और उसके लिए अमेरिका और मगरब से भी बहुत मार खाई, लेकिन उसका बड़ा मकसद ये था कि हम इंडिया की बालादस्ती को कबूल नहीं करते। वाहिद पाकिस्तान मुल्क है इस खित्ते के अंदर जो भारत की बालादस्ती को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा, नहीं, जल्दबाजी मत करो, जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। मुसलमान हमारे ही है ना, और किसी, ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना, ये अरब के मुसलमान नहीं है ना, ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना, ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना। हमारे मुसलमान, जैसे बीमारी हमारी बीमारी, सिरदर्द हमारा सिरदर्द, प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, समस्या हमारी समस्या, उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान। संसार में 28 देश हैं मुसलमानों के, संसार में 200 से ज्यादा देश हैं क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के। अब भागो, तुम्हारा कौन सा देश है, तुम कहां जाओगे? अमेरिका वालों ने भी बोर्ड लगा दिया, नो मोर पटेल्स, और पटेल नहीं चाहिए। तुम बताओ, पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या है? तो जब दुश्मन है तो फिर या तो दुश्मन हमको खत्म कर दे या हम दुश्मन को खत्म कर दें। ये मैं नहीं कहता, हमारे राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतीक्षा मत करो, जो करना है वो कर डालो। जब तक पाकिस्तान को खाकिस्तान नहीं बनाओगे तब तक गुजरात के बेटे और भारत माता की संतानें सुख की नींद नहीं सो सकते। बस पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना है, और ये काम यहां से शुरू करना है। अखंड भारत का ये ख्वाब हिंदुओं के लिए सबसे पहले 400 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और उसका वजीर चाणक्य ने पूरा किया, और उसके बाद अशोका ने इसकी बुनियादें मजीद मजबूत की और हिंदुओं की तारीख की सबसे अजीम तरीन रियासत कायम की। आज भी सब हिंदुस्तान के सरकारी इदारों के एम्बलम में वही चीजें नजर आती हैं जो अशोका की रियासत में उसके सरकारी दस्तावेजों पर पाई जाती थी। हिंदू ज़ायनिस्ट का बुनियादी वजूद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कयाम पर पैदा हुआ, और इनकी नापाकी 1937 में होने वाले इलेक्शंस की फतह के बाद सामने आई। और आज यही हिंदू ज़ायनिस्ट इंडिया की हुकूमत में बहुत मजबूत इख्तियार रखते हैं। हिंदुस्तान में BJP, RSS, बजरंग दल, शिवसेना और आर्य समाज जैसी इंतहा पसंद हिंदू जमातों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कश्मीर से लेकर आसाम तक हिंदुस्तान में रहने वाले गैर हिंदू के खिलाफ नस्ल परस्ती की सबसे बदतरीन मिसाल कायम की हुई है।
لیکن ہندو زائنسٹ کے ان مظالم کو زائنسٹ میڈیا اور خود پاکستان کا بیکا ہوا بے غیرت میڈیا کبھی بیان نہیں کرتا۔ فری میسنز اور ہندو زائنسٹ کے مقاصد اور تاریخی نقطہ نظر میں بہت تھوڑا صحیح فرق ہے، لیکن اس وقت ان دونوں کے مقاصد کی سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان اور اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز۔ پاکستان کی قوم کے حوصلے اور ہمت اور اسلام کے لیے بے انتہا عشق کا نمونہ انڈیا اور اسرائیل 65 اور 67 کی جنگ میں دیکھ چکے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے پاکستانی قوم کے دلوں میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی کے لیے عشق کو اپنا نشانہ بنایا، اور ایک مسلمان اتحاد کو توڑنے کے لیے شیخ مجیب جیسے غداروں کو خریدا، اور ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے پاکستانی آپس میں قومیت میں بٹنا شروع ہو گئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ 1971 کے بعد ہی 1974 میں آزاد بلوچستان اور اس کے بعد سندھ میں سندھو دیش اور جناپور، سرحد میں پختونستان جیسے شوشے چھوڑے گئے۔ ان تصورات کی حمایت کرنے والی جماعتیں اور ان کے قائدین میں آج بھی ہم شیخ مجیب اور مفتی بہائنی کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔